Yes, we did. Now, as you know that we have already done all the chapters, all the revision. Now, these days, I think you were not there in Saturday's meeting and even Friday's meeting, I think. So, we were doing important questions from sample paper. Okay? So, I am going to complete that work. Just wait for a few seconds. Let me take out this page also. Yes, these are objective type questions, mainly from macroeconomics. Okay? If you find any question difficult or little bit unusual, then you can note down that. Okay? Otherwise, quite familiar questions are there if you have revised. चलिए, now I want you to respond also. ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं. This is related to first question, chapter aggregate demand and aggregate supply. So if the value of APC is given as 0.75, then value of average propensity to save would be, both of you please keep yourself unmute कर लो बेटे अपने आप को. हाँ जी बताइए लवदीप कौर. If APC value is 0.75, then what would be the value of APS? I'm 0.25. Yes, 0.25. ठीक है. Formula क्या है? APC plus APS is equal to 1, and we are given one value, so that value can be subtracted from 1, and then we will get the second value. Very right. 1 minus 0.75, that is equal to 0.25. Next, which of the following is not the function of central bank? Choose the correct alternative. अब आपको variety of this type of questions will also be there. Now you can please read from the screen. Not Ma'am, option B. Yes, that is perfectly right answer. Because rest three, banking facility to government, lending to government, lending to commercial, all these are the function. So जो central bank है, that does not deal with the public. So second option is the right answer. Banking facility to public. Very right. Okay. Third, next question. If legal reserve ratio is 20%, then what would be the value of money multiplier? अब आंसर पढ़ना नहीं है, मैंने आंसर लिखा हुआ है साथ में, but I want you to solve first. Keep your notebook with you. Solve करिए जरा इसको. Formula of money multiplier is equal to 1 divided by legal reserve ratio, 1 over LRR. तो अब आप डिवाइड करो जरा, 1 divided by 20%. तो ये हो गया 1. 5. Yes, 1 5. 20 over upside down 5 आ जाएगा. ठीक है. फॉर्मूला याद कर लीजिए. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन. विद ए राइज इन रियल नेशनल इनकम, वेलफेयर ऑफ द पीपल. हाँ जी बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन? Rises. Yes, rises. Can you please tell me the meaning of real national income? रियल नेशनल इनकम का मीनिंग होता है मॉनिटरी नेशनल इनकम या मॉनिटरी इनकम, एक होता है रियल इनकम. नेशनल साथ में लगा देते हैं. तो इसका मतलब है कि वट एवर मनी इज देयर विद अस इन अवर हैंड्स, what amount of goods and services या which quantity of goods and services we can buy with the help of that money. For example, आपके पास में you have 100 rupees. ठीक है. तो 100 rupees is your monetary income. You go to market and with those 100 rupees you are able to buy only, मान लो 2 registers and 1 pen. आप इतना ही लेके आ पाते हो. 2 register काम करने के लिए and 1 pen. तो that means you are able to buy 3 commodities only. तो real income means that is equal to 3 commodities.
चीजों की टर्म्स में, गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में, व्हाट कैन वी बाय विद द हेल्प ऑफ गिवन मनी इनकम, दैट इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। तो ऑब्वियसली जब हम अपने गिवन मनी से ज्यादा खरीद के ला सकते हैं, जितनी ज्यादा चीजें लाते हैं, तो अवर दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड विल गो अप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो अप, वी विल बी एबल टू कंज्यूम मोर, तो ऑब्वियसली हमारा जो वेलफेयर है दैट इंक्रीजेस। ओके, देन नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। पूर्णिमा मैम, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन ना? यस मैम, यस मैम। एक्चुअली आई फॉरगॉट, मैंने कहा पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ जी मैम, हो रही है। ठीक, फाइन फाइन। हाँ जी बेटे, नाउ लुक एट 17th क्वेश्चन। इफ ए कंजम्पशन फंक्शन ऑफ ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, ठीक है, कोई भी इमेजिनरी इकोनॉमी है, तो उसमें सी फंक्शन इज गिवन 100 plus 0.6y, then now please make use of your notebook and pen and find the values. What will be the value of MPC and MPS for the economy? ये 3 marks में क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, क्या होगी वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस? वेरी इजी, आंसर सामने ही है आपके। अब देखो ध्यान से, पढ़ा नहीं है आपने, है पेपर आ गया और आपको भी रिवाइज नहीं हुआ है। सी का फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। ए का मतलब ऑटोनमस कंजम्पशन, दैट इज गिवन हियर इक्वल टू 100, तो जो 100 है दैट इज ऑटोनमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई, वाई मीन्स इनकम, नेशनल इनकम, और बी का मीनिंग होता है कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी, ठीक है। तो 0.6 जो है दैट इज इक्वल टू एमपीसी, ठीक। MPS is equal to 0.4. यस, वेरी राइट। तो अगर ये 0.6 हमारा, ये 0.6 अगर ये एमपीसी है, तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, दे हैव आस्क्ड कि राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, means with the help of this C function we have to now convert it into saving function. You please note down in your notebook what will be the saving function. saving function C का is, हाँ बोलिए। C is equal to 100 plus 0.4y. No, this is wrong. 50% is okay, but 50% is wrong answer. Think. S is equal to 100 plus. अब 75% आंसर इज ओके, थोड़ा सा और गलत है, बताइए। और लवदीप कौर आप भी बताओ, आप हंस के काम नहीं चलाओ, है। यहाँ पर आएगा S इज इक्वल टू, आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे, S इज इक्वल टू -100, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन फंक्शन में अगर ये 100 दिस इज ऑटोनमस कंजम्पशन, तो व्हेन वी राइट S फंक्शन, तो इन दैट केस दिस विल बी डिस सेविंग, तो फॉर दैट वी हैव टू राइट हियर माइनस साइन, वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन, -100 प्लस 0.4y, ठीक है। ध्यान से नोट करना है आपने, अगर यहाँ पर दिस वैल्यू, दिस इज ऑटोनमस कंजम्पशन, तो सेम वैल्यू दैट बिकम्स डिस सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ सेविंग फंक्शन, तो अवर इक्वेशन विल बी -100 प्लस 0.4y, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट मी टेक आउट दिस पेज आल्सो, जस्ट अ मिनट। यस, हाँ जी बेटे, अब आपने इसमें बताना है, नाउ यू हैव टू टेल which among the following are capital goods and which are consumer goods and why. 3 marks में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी फेमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड। तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स फॉर द डायरेक्ट satisfaction of their needs, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, एंड दोज गुड्स आर नॉट फर्दर सोल्ड टू एनीवन। जैसे अभी आपके हाथ में, यू आर मेकिंग यूज ऑफ पेन, नोटबुक, मोबाइल, तो दैट मीन्स दीज आर योर कंज्यूमर गुड्स, आप इनको यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रही हूँ, दीज आर अवर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ऑन दी अदर साइड कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? विच आर फर्दर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, टूल्स है, दीज गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव एंड दे फर्दर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ commodities or other things. So keeping that thing in view, now you have to tell. First point is a car used as a taxi.
In which category will this commodity? Which one? Please repeat. Capital. Yes, capital good आएगा. आप लिखोगे capital good because this car can be used for long period of time. ठीक है, reason भी देना है साथ में, long period of time. Second, refrigerator in a hotel. Consumer. No. नहीं, capital ही है. Capital. होटल Capital. हाँ, अगर कंज्यूमर हाउस होल्ड होता फिर कंज्यूमर बनना था. होटल है तो वहां पर वो अपने एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर आएगा दिस विल बी कैपिटल गुड बिकॉज अगेन दिस कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द होटल पीपल. ओके, नेक्स्ट, एयर कंडीशनर इन हाउस. Ma'am, can you repeat? एयर कंडीशनर इन AC, एयर कंडीशनर इन ए हाउस. Ma'am, consumer good. Yes, this is a consumer good. Why consumer good? Because this AC air conditioner is there for the use of consumer for his own consumption. उसने कोई इससे फायदा नहीं उठाना है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना है. He is making use of this AC for his own consumption purpose. ठीक है. अच्छा, अगर आ जाए a car in a house. Consumer good. घर पे कोई भी चीज जो होती है that will come in the category of consumer good. Very right. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके दिया हुआ है. दे हैव गिवन डिफाइन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनल कंजम्पशन. मींस वी हैव बीन आस्क्ड सिंपली अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स. हाँ जी लवदीप कौर, कैन यू टेल बेटे क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हाँ जी लवदीप. एनी बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. कोई बात नहीं, चलो रहने दो. आई थिंक देयर मे बी सम नेट इशू. हर्षा सिंह, कैन यू टेल बेटे? Ma'am, intermediate consumption refers to that consumption which cannot be used by the consumer directly, which is those goods which are used to produce further goods to make final goods or capital goods, and the final consumption is that consumption which consumers consume directly, and it do not need further production. ठीक है, जो आपके चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है वहां पे दे हैव गिवन द हेडिंग एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल फाइनल गुड्स. ठीक है, बट हियर नाउ इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन. डोंट वरी, मतलब आपने नाउ यू हैव टू जस्ट मोल्ड द सेंटेंस. सेंस वही रहना है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन which takes place during the process of production. Means raw materials consumption that gets used up, that gets merged during the process of production. ठीक है. And intermediate consumption, who makes this consumption? Producers. वही produce करते हैं ना, वही चीजों को use करते हैं. तो this is done by producers. On the other side, जो final consumption है means that consumption which takes place in the households या by the consumers for the direct satisfaction of their wants, and it is done by consumers या हाउस होल्ड सेक्टर, ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है. उसके बाद कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एग्जांपल, बिकॉज दे हैव आस्क्ड ना कि गिव विद एक्सप्लेन विद एग्जांपल. जैसे आप कह सकते हो रॉ कॉटन यूज्ड इन ए टेक्सटाइल मिल, तो दैट विल बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ऑन द अदर साइड फाइनल के लिए आप दे सकते हो ए रेडीमेड ड्रेस यूज्ड बाय ए स्टूडेंट या यूज्ड बाय एनी चाइल्ड, कुछ भी आप दे दो. आइसक्रीम यूज्ड बाय या eaten by a child, कुछ भी ऐसा एग्जांपल. ठीक है. तो then one example is to be also to be given. Okay, next है, next question, 19th question है, what is investment multiplier and explain its working using a suitable numerical example. हाँ जी, can you tell investment multiplier क्या होता है? लवदीप कौर, नाउ यू प्लीज ट्राई. अब देखते हैं आपकी आवाज आती है कि नहीं, चेक कर लीजिए. बोलिए जरा, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर?
नहीं बेटे लवदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही, पीछे से ही प्रॉब्लम है, चलो आप रहने दो। हाँ जी डियर हर्षा, यू आर द ओनली वन लेफ्ट, बताइए क्या हो सकता है मल्टीप्लाई? नहीं? Okay, then in that case I have to tell investment multiplier means the number of times income increases due to a given change in investment. I repeat, the number of times income in an economy increases या changes due to a given change in investment. या फिर in other words we can also define in this manner that investment multiplier is equal to the ratio of change in income to change in investment. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K is equal to डेल्टा y divided by डेल्टा I. मतलब जो चेंज आता है इनकम में किसके करके, ड्यू टू विच रीजन, बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ड्यू टू दैट कॉज अगर इनकम बढ़ती है या कम होती है, जो भी चेंज आता है, तो दैट इज कॉल्ड, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आगे दे हैव गिवन कि एक्सप्लेन वर्किंग यूजिंग ए सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। इसके आगे आप कोई भी टेबुलर फॉर्म में यू कैन टेक, जो आपका एग्जांपल था ना, याद है आपको, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर किया था ना, एक जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मान लो 1000 रुपीज, एमपीसी की वैल्यू है 0.5, तो फिर इसका मतलब वो 1000 रुपीज में से हाफ विल बी कंज्यूम्ड, हाफ विल बी सेव्ड, तो 500 हो जाएगी कंजम्पशन, 500 सेविंग। फिर एक पर्सन की कंजम्पशन बिकम्स द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, फिर वो टेबल आपका आगे चलेगा। 500 जो कंजम्पशन हुई है सेकंड पर्सन के कॉलम में आ जाएगा कि उसकी इनकम बन गई, एंड सो ऑन। ठीक है, ये एग्जांपल हमने किया हुआ है, आप अपना जरा नोटबुक से फिर बाद में चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है discuss the meaning of any two methods of controlling credit which may be adopted by the central bank. Okay, any two methods, 4 marks question, that means 2 marks to each point, 2 points are to be given. Now think carefully, क्या हो सकते हैं methods? I hope you would be remembering, जो central bank है that can make use of 2 types of tools. One is quantitative tool, one is qualitative tool. ठीक है, तो quantitative tool में further various methods are there, like bank rate is there, then open market operations are there, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse repo rate, all these come under quantitative tools. ठीक है, और qualitative tools में कौन से आते हैं? Margin requirement of loans, and then next is credit rationing, direct action, and moral suasion. तो जो last two हैं they are not so important, so left are only credit rationing and this margin requirement of loan. Now total आपके पास हो गए 4-5 points are in quantitative side and 2 main points in qualitative side. Now since they have not written ki which tool या which method, quantitative or qualitative, nothing has been specified particularly, so then out of all these methods you can give any two. जैसे for example you suppose you give bank rate, तो फिर आप लिखोगे कि firstly you will give the meaning of bank rate, means that rate of interest which is charged by the central bank from commercial banks when it lends loans to commercial banks for long period of time. ठीक है, when central bank lends loans to commercial banks for long period of time, तो that rate of interest is called bank rate. ठीक, तो अब उसको how is that bank rate used to control credit? तो if there is period of inflation, so during that period this bank rate is increased, and if there is period of depression, deflation, then this bank rate is diminished, decreased. ठीक, फिर उसका थोड़ा सा आपने very hardly in 1 or 2 lines आपने इसको expand कर देना. Then second method, like suppose you give us this cash reserve ratio, मतलब there is no hard and fast rule की which method to be given, जो आपको आता हो अच्छे से you can give that. तो like if I want to give CRR, तो CRR means that interest which is charged by that percentage of total deposits of commercial banks which they have to keep with the central bank. तो अगर there is time of inflation, मतलब credit is to be checked, control करना, उसको रोकना है, तो then in that case CRR is increased. And if there is period of deflation, that means credit is to be expanded, तो in that case this CRR is reduced. ठीक, तो ऐसे आपने brief सा करके these two headings are to be given. In the beginning firstly you will write कि क्या करना है, बढ़ाना है या कम करना है, जो भी है टाइम पीरियड देके,
उसके बाद में लेटर ऑन यू कैन गिव द मीनिंग, ठीक है। ये नहीं कि हम पहले मीनिंग के ऊपर ही सारा जोर लगा दें और करना क्या है, जो मेन क्वेश्चन है दैट वी मिस, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। पहले आपने बता देना कि उसको क्या करना चाहिए, देन ब्रीफली यू कैन डिफाइन दैट टर्म, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन सा फंक्शन है ये, बैंक ऑफ इशू, दैट मीन्स जो करेंसी इशूइंग फंक्शन है, ठीक। बुक में शायद ये नाम भी दिया होगा, करेंसी इशूइंग फंक्शन या बैंक ऑफ इशू, वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें आ जाएगा कि जो सेंट्रल बैंक है 4 मार्क्स है, तो वो 4 पॉइंट्स यू हैव टू मेक। भाई जो सेंट्रल बैंक है दैट हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री, ऑल नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस they are issued by the central bank, and then this central bank has a monopoly to issue this currency. Monopoly means no other agency in the country can issue the currency. Then public faith is maintained by the RBI, by the central bank. Then central bank can have some flexibility in the system. It can control the system because it has the sole authority. ठीक है, ऐसे करके आप कोई भी 4 points you have to make. Fine. Okay. Next है, explain the national income determination in an economy using saving and investment approach. Use diagram. तो यहाँ पर firstly you will give the meaning of saving and investment approach. Can you tell क्या होता है determination of equilibrium? कहाँ पर होता है अगर saving investment approach हो, तो where will this equilibrium take place? या national income determination कहाँ पर होगा? नहीं, मैं ही बोल दूं सारा। हाँ, national income will get determined at that point where savings in the economy are equal to investments in the economy. Where savings become equal to investment, that point is the point of determination of national income. या उसी को ही कह देते हैं equilibrium, ठीक। उसके बाद they have asked कि use diagram, फिर आपने वो जो saving और investment वाला diagram है ना, जिसमें saving function है, एक investment की line है parallel to x axis, वो वाला diagram बना के then that is to be explained. Here in this question, table is not required because question is only for 4 marks, so no need of extra explanation. Unnecessarily, it is not to be given. Only definition, then you can give equation. उसके बाद then this diagram, then its explanation. Points में explanation. ठीक है? Okay. Next है. Next question. Define fixed exchange rate. And next उसका second part is given. How is exchange rate determined in a flexible exchange rate system? Now this is 4 marks question and they have given the division also. So define fixed exchange rate. Only definition 2 lines में. Can you give? Harsha, can you define? क्या होता है fixed exchange rate? Fixed exchange rate is that rate which is fixed by the government, that the currency, that the domestic currency will be exchanged with the foreign currency with the given rate which is fixed by the government. Perfectly all right answer. So fixed exchange rate system means that system in which at which price domestic currency is to be exchanged with the foreign currency. That decision is taken by the authority, that is government of the country. Only government can increase the value or decrease the value as per requirement or need. मतलब whatever decision is to be taken, that is to be taken by the government. Only within 2-3 lines here this is to be defined. उसके बाद 4 marks में it is asked flexible. तो फिर flexible में फिर आप you will give another heading flexible system. उसमें आप लिखोगे कि flexible exchange rate is determined at that point where market forces of demand for foreign currency and supply of foreign currency become equal to each other. ठीक है? उसके बाद very briefly, no need of explanation, you will make further 2 headings. On one side you will write this sources of demand या reasons of demand for foreign currency. Why do we demand? 3-4 points. Because 4 marks in total, you can give any 4 points. Similarly, फिर sources of supply of foreign currency, मतलब from where do we get, उसके any 4 points. फिर उसके बाद simply diagram and within 2 lines comprised explanation. एक डिमांड का डायग्राम जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस का होता है वैसे ही आपने डायग्राम बना के then hardly in 2-3 lines you will explain कि E is the point of equilibrium. उसके corresponding जो भी आपकी y axis पे जो भी point आप ले रहे हो that is the flexible exchange rate. ठीक है?
अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, अगेन दिस इज फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन करना है हमने बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ए गवर्नमेंट बजट। और सेकंड पार्ट पूछा है प्राइमरी डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, तो ओनली डेफिनेशंस आर टू बी गिवन बिकॉज मार्क्स आर वेरी लेस, शॉर्ट आंसर ही बनेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? which neither leads to creation of assets nor lead to reduction in liabilities। ना तो कोई एसेट बनता है ऐसा खर्चा जिसको करने से ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है ना ही कोई लाइबिलिटी खत्म होती है, वो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस दैट एक्सपेंडिचर which either leads to any creation of any asset or lead to reduction in liability। मतलब ऐसा खर्च जिसको करने से या तो हमारी लाइबिलिटी कम हो, थोड़ी हो, कम हो, रिड्यूस हो, या हम कोई एसेट परचेज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अमेरिका। तो अब मशीनरी परचेज कर ली, इसका मतलब कोई एसेट बना है, खर्च तो किया है बट कोई एसेट भी तो बना है ना कंट्री का। या और एग्जांपल हो सकता है रीपेमेंट ऑफ लोन विच वाज टेकन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका मतलब कोई भी कंट्री का नाम ले सकते हो। तो रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या हो गया कि हमारी लाइबिलिटी थी, अब हमने उस पैसे को वापस कर दिया, तो दैट मीन्स अवर लाइबिलिटी हैज गॉट रिड्यूस्ड। तो मनी हैज गॉट स्पेंट बट हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, हमारी देनदारी खत्म हो गई है या कम हुई है। तो ऐसा खर्च कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट का स्टाफ है उसकी सैलरीज देनी है, या पुलिस सिस्टम है, या दिस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। तो ऐसी चीजों के ऊपर अब खर्चे तो होते ही हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो देना ही पड़ता है सबको, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। बट उस खर्च को करके ना तो गवर्नमेंट का कोई सामान बन रहा है, ना तो कोई एसेट बन रहा है, ना ही किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी फिनिश हो रही है। ठीक, तो ऐसा एक्सपेंडिचर बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद सेकंड है प्राइमरी डिफिसिट एंड फिस्कल। तो प्राइमरी डिफिसिट आपने फिर डिफाइन करके सेंटेंस में, देन यू विल से प्राइमरी डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। कौन सी इंटरेस्ट पेमेंट? जो पुराने लोन लिए हुए होते हैं गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा होता है, जो भी पिछले लोन्स हैं उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना पड़ना होता है, तो वो इंटरेस्ट को अगर माइनस करते हैं फिस्कल डिफिसिट में से, तो देन वी गेट प्राइमरी डिफिसिट। तो फॉर्म फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में यू विल राइट दैट प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। बस इतना ही देना है। देन फिस्कल डिफिसिट दैट इज इक्वल टू total budget expenditure minus total budget receipts excluding borrowing। ठीक है, excluding या leaving borrowing या other than borrowing, word can be any। तो total budget expenditure हो जाएगा, in bracket you can write capital expenditure plus revenue expenditure, keep in one bracket, minus फिर other bracket में you will mention revenue receipts plus capital receipts other than borrowing। ठीक है, मतलब जो बोरो करना है मनी उसको छोड़ के बाकी सारी तरह की रिसीट्स, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो बन जाता है हमारे ये टर्म फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, उसके बाद है और करके दे हैव आस्क्ड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स इन ए बजट एंड गिव देयर कंपोनेंट्स। अब ये पूरा ही है, मतलब 6 मार्क्स का प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। तो रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं? कैन यू टेल हर्षा? हर्षा सिंह? No? Okay. Revenue receipts are those receipts which neither create any liability nor reduce any asset। मतलब गवर्नमेंट को पैसे तो मिलते हैं बट ना तो उससे कोई एसेट कम होता है और ना ही कोई लाइबिलिटी बनती है। On the other side, capital receipts are those which either lead to reduction in asset or lead to creation of liability। जैसे किसी से लोन लिया तो पैसे तो आ गए बट लाइबिलिटी बन गई, या अपना कोई सामान बेच दिया तो मनी तो आ गया बट एसेट कम हो गया। जिस केस में ऐसा दोनों में से एक चीज हो जाए वो कैपिटल रिसीट, और जिसमें ऐसा कुछ भी ना हो वो रेवेन्यू रिसीट। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। फिर आगे फर्दर उनके जो नॉन टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स है ना, फी, लाइसेंस फी, उसके बाद अपना है स्पेशल असेसमेंट, एस शीट, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स,
फीस या एक और था हमारा पेनल्टीज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये सारे इतने सारे एग्जांपल में से एनी 4-5 यू कैन राइट। और जो कैपिटल सीट है उसके एग्जांपल क्या बनेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, रिकवरी ऑफ लोन्स, देन सेकंड बन सकता है हमारा दिस बोरोइंग, बोरोइंग कैन बी फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द कंट्री और फ्रॉम आरबीआई और फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, देन स्मॉल सेविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑल दीज आर गिवन इन द बुक, यू टेक केयर ऑफ दीज, इनको आपने पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल। इफ यू हैव नोटबुक विद यू, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट these two values, निकालिए जरा जल्दी से। कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम। ठीक है, फर्स्टली आपने निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैं वैल्यूज बोल भी देती हूँ, यू कैन क्रॉस चेक। फर्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, second is private expenditure 3500, next है gross domestic capital formation 1100, next net exports 500, उसके बाद है net factor income from abroad 100, net factor income from abroad 100, next है net indirect taxes that is 300, net indirect taxes 300, उसके बाद है subsidies 40, फिर चेंज इन स्टॉक इज 80 एंड लास्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 120। ठीक है, फर्स्टली यू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ पहले आप आंसर लिख लो, बिकॉज इन केस मीटिंग गेट्स ओवर तो यू कैन क्रॉस चेक लेटर आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन। आंसर है इसका, फर्स्ट पार्ट्स आंसर इज 9100 एंड सेकंड पार्ट्स आंसर इज 8780 रुपीज करोड़। ठीक, now let us see how can we solve this question. First of all, we observe that they have not asked this question with the help of any particular method, मतलब name of no method has been given. तो in that case, firstly we have to observe कि जो maximum values हैं they are related to which method. Can you see and tell कौन से method से related values have been given? These values are related to expenditure method. ठीक है, expenditure method से related है। See this first value government expenditure, second consumption, private expenditure, फिर gross domestic capital formation, net export. First 4 values को देख के हमें पता चल रहा है कि ये expenditure method से बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, राइट डाउन GDP at MP is equal to private expenditure plus government expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. Already by chance see all these are given in first 4 points. Add all these values and see are you getting this 9100 or not. Please check. Two minutes are left with it. Please do quickly. ठीक है, 9100 बन रहा है। सीधे देखो फर्स्ट 4 वैल्यूज को अगर ऐड करें 4000 प्लस 3500 प्लस 1100 प्लस 500, इफ यू ऐड दीज 4 वैल्यूज ना टोटल आपका बन रहा है, आई थिंक लवदीप ने कर लिया 9100 आ रहा है बेटे लवदीप को, वेरी गुड, शाबाश। ओके, अब निकालिए नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब हमने ऊपर निकाल लिया हुआ है ना GDP एट MP, उसी से आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो लिखिए इक्वल टू के बाद GDP एट मार्केट प्राइस माइनस करना पड़ेगा इसमें से डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको नेट बनाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद माइनस करना चाहिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे होती है ना, तो NIT माइनस करेंगे, और नेशनल बनाना है तो वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला, NNP at factor cost is equal to GDP at market price minus depreciation minus net indirect tax plus net factor income from abroad.
करिए, यू विल गेट होप कि आपको मिल जाएगा आंसर। नाइन्टी 100 में से माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगी 120, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर गिवन माइनस 300 और प्लस करेंगे 100। ठीक है, आ रहा है लवदीप आंसर? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। 8780 साथ में रुपीस करोड़। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस मीटिंग, टाइम इज ओवर ऑलमोस्ट। हाँ जी, अभी मीटिंग बीच में ही रुक जाएगी। सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल। ठीक है जी, अब आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी पेपर की, तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू द पेपर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी 3 मार्क्स का है, 4 का है, 6 का पॉइंट्स में जो 60 वर्ड्स है, 60 to 80 या 80 वर्ड्स है, या जो भी लिमिट